باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، میں آپ کا ہوسٹ فادر کامران یونس ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں بلاہٹ اور خدمت کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم خدا کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے اپنے اس پاکستان کے لیے بہت سی بلاہٹوں کو بھیجا ہے، اپنے لیے بلاہٹوں کو چنتا ہے۔ آج انہی پاکستان کے مزدوروں اور بلاہٹوں میں سے ایک اور خوبصورت بلاہٹ کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ بلاہٹ کی کہانی سنیں، ہم آئیے ان کی زندگی کے بارے میں چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، تو جو جھلکی آپ نے دیکھی ہے، آج ہماری مہمان ہمارے درمیان موجود ہے۔ میری مراد سسٹر زرینہ ہدایت سے ہے۔ سسٹر جی، آپ کو آوے ماریا کیتھولک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں ادا کیا ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آج کیا تاثرات ہے جب آپ ہمارے اس چینل پہ ہمارے ساتھ اپنی بلاہٹ کی کہانی بانٹنے کے لیے آئی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فادر جی۔ سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے کیتھولک ٹیلی ویژن کے ذریعے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اپنی بلاہٹ کی کہانی ان تمام نوجوانوں کے ساتھ شیئر کر سکوں جو خداوند کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ دشواریاں ہیں اور وہ اپنے آپ کو پختہ طور پر خداوند کی طرف نہیں لا رہے۔ تو بلاہٹ کا سفر تو ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تب سے ہی اشعیاء نبی کے صحیفے کے مطابق خداوند ہمیں چن لیتا ہے۔ اس کے بعد پرانے عہد نامے میں ابراہیم کی بلاہٹ سے شروع کر کے مختلف بلاہٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو خداوند نے مختلف طریقوں سے چنا۔ پھر اسی طرح سے نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے چنا۔ اس کے بعد بہت سارے انبیاء کرام، اس کے ساتھ ساتھ چرچ فادرز ہیں، بہت سارے مقدسین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اور میرا تعلق کیونکہ سسٹرز آف چیریٹی آف سینٹ جیننٹیڈ سے ہے اینڈ سینٹ جیننٹیڈ کی اسپرچویلٹی سینٹ ونسنٹ ڈی پال سے آتی ہے۔ تو جب میں سینٹ جیننٹیڈ کی بلاہٹ کو دیکھتی ہوں یا سینٹ ونسنٹ ڈی پال کی بلاہٹ کو اور اس کی اسپرچویلٹی کو دیکھتی ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم خداوند یسوع مسیح کی بشارت کو دیکھتی ہوں، کس طرح سے شاگردوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جا کر انہوں نے کلام کی منادی کی اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جس طرح سے شاگردوں نے پوری دنیا میں جا کر اس کی منادی کا، اس کے جی اٹھنے کا تہلکہ مچا دیا۔ سو اسی منادی کی مثالیں آج ہم بہت سارے فادر، سسٹرز اور مبشران انجیل، ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے اور لے مومنین ہیں جو خداوند کی بشارت آگے لے کر چل رہے ہیں۔ بے شک سسٹر جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بلاہٹوں کا کام جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ جاری رہتا ہے، خدا اس کو یوں ہی جاری بھی رکھے گا۔ تو آپ نے سسٹر جی اپنی اس گفتگو میں ذکر کیا کہ مختلف جگہوں سے خدا نے جو اپنے لیے بلاہٹیں لی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آبائی علاقے کے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، فیملی ممبرز کتنے ہیں اور آپ اپنی فیملی میں کس نمبر پہ آتی ہیں؟ میرا تعلق
फैसला आबाद से है ऑब्वियसली, दैन फैसला आबाद डायसिस कम्स टू माई डायसिस, माई होम टाउन डायसिस, और हम लोग 8 बहन भाई हैं। फैमिली में मैं तीसरे नंबर पे हूँ और मैं ही एक सिस्टर हूँ, एक मेरी छोटी सिस्टर फोकलारे मूवमेंट की मेंबर है। बाकी सारे बहन भाई शादीशुदा हैं और खुदावंद के फजल से वो बहुत अच्छी ख़ानदानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा उन्हें भी खुश रखे। और सिस्टर जी, आपकी इस बुलाहट के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने उस ख़ानदान में से आपको चुना और आप फैसलाबाद डायसिस से अभी हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में काम कर रही हैं। सिस्टर जी, मैं आपकी थोड़ी सी बुलाहट की कहानी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले नाज़रीन और देखने वाले हाज़रीन वो बड़े ख्वाहिश रखते हैं कि बुलाहट की कहानियाँ जो हैं उन तक पहुँचे। तो आपकी बुलाहट की कहानी क्या है, ज़रा वो हमारे नाज़रीन के साथ बांटिए। मेरी बुलाहट का आगाज़ इस तरह से ही हुआ, जैसे बचपन में हम सारे अपने वालिदैन के साथ चर्च जाते हैं, तो मैं भी जब फैसलाबाद कैथेड्रल में जाते थे, हमारे अपनी कॉलोनी में कैथलिक चर्च नहीं था, प्रोटेस्टेंट था बट कैथलिक चर्च नहीं था। सो बड़ी फीस्ट पे क्रिसमस, ईस्टर, खजूरों का इतवार, यीशु बादशाह की ईद, इस तरह की बड़ी फीस्ट पे हम लोग अपनी कैथेड्रल जाते थे। और कैथेड्रल में हमेशा डोमिनिकन सिस्टर्स को मैं चर्च की क़यादत करते हुए देखती थी, लाइक बच्चों को कैटेकिज्म सिखाते हुए, क्वायर को लीड करते हुए, चर्च की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियां निभाते हुए। सो सिस्टर्स को देख के मैं तकरीबन 4 या 5 क्लास में थी जब मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए डेडिकेट करनी चाहिए और मुझे भी इस तरह से, जैसे सिस्टर्स क्वायर के साथ गीत गाती हैं, उन्हें लीड करती हैं, बच्चों को कैटेकिज्म सिखाती हैं, इसी तरह से मुझे भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए वक़्फ़ करना चाहिए। दैन लेटर ऑन मैंने अपने वालिदैन से इस थॉट को शेयर किया और मेरे वालिदैन में मेरी बहुत सपोर्ट की। जब मैं सिस्टर्स में आई तो हमेशा वो मेरे शाना बशाना चलते रहे कॉन्वेंट में, क्योंकि कायदे ज़वाबित बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। और मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे इस तरह से सपोर्ट किया कि कॉन्वेंट की लाइफ से रिलेटेड जो भी कायदे ज़वाबित थे, कभी भी उन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ नहीं कहा था ये चीज़ आपके लिए मुश्किल है, वो चीज़ आपके लिए मुश्किल है। कई दफ़ा अगर मैं अपनी मुश्किलात शेयर भी करती थी तो मसीही ईमान को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिदैन हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात बहुत आती हैं, और फिर वो मुझे हमेशा मसीह खुदावंद की मिसाल देते थे कि कलवरी के रास्ते पर चलते हुए मसीह खुदावंद ने कितनी मुश्किलात को देखा तो उसने कलवरी का सफ़र तय किया था। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की, क्योंकि बुलाहट में ख़ानदान का किरदार बहुत ज़रूरी है और आपकी बुलाहट की कहानी इस बात का वाज़े सबूत देती है कि आपकी बुलाहट में तक़वियत का सबब आपके वालिदैन, आपका ख़ानदान है। हमारी भी दुआ है खुदा आपको इसी तरह बुलाहट में वाबस्ता रखे, कायम व दायम रखे। सिस्टर जी, आपने जब अपनी इस खिदमत को ज्वाइन किया और अपने फ़ाइनल प्रोफेशन के बाद आपने कहाँ कहाँ और क्या क्या खिदमत अभी तक सर अंजाम दी हैं? बीइंग जूनियर सिस्टर 1999 में मेरी 9वीं शीट स्टार्ट हुई और 9वीं शीट से ही हमारे रिलीजियस लाइफ के इयर्स काउंट होना शुरू हो जाते हैं। 2024 में मुझे 25 साल हो गए थे रिलीजियस लाइफ का हिस्सा होते हुए। सो आई सेलिब्रेटेड माई सिल्वर जुबली ऑन 21 सितंबर 2024। जी आपको और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फादर जी। देन बीइंग जूनियर शादरा में मुझे स्कूल में भेजा गया क्योंकि मुझे टीचिंग से बहुत लगाव था और मेरी सारी स्टडीज़ भी टीचिंग से ही रिलेटेड थी। देन आफ्टर दैट अभी मुझे 1 साल हुआ था, फर्स्ट ईयर जूनियर 8 के बाद ही मुझे रोम स्टडी के लिए भेज दिया गया। फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी मैंने रोम से की थी, एंजेलिकम यूनिवर्सिटी से। जब फिर मैं वापस आई तो दोबारा शादरा में ही मुझे खिदमत का मौका दिया गया स्कूल में। स्कूल में रहते हुए मैंने एज अ टीचर, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल खिदमत सार अंजाम दी। देन टीचिंग इन द स्कूल मैंने अपनी स्टडी पे भी फोकस किया। बीएड एंड एमए इंग्लिश मैंने अपनी स्कूल की जो खिदमत है उसके साथ साथ ही मैंने अपनी स्टडीज़ भी ख़त्म की। देन 2013 से 2018 तक
दारुल करिश्मा लाहौर में मैंने अपनी खिदमत सारा अंजाम दी। दारुल करिश्मा ज़हनी माजूर लोगों का एक इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे सेमिनेरियंस जो मेजर असेंबली में जाते हैं उनका आपकी भी बात को बढ़ाऊंगा। मुझे याद है दारुल करिश्मा में मैं खुद भी उन नौजवानों के साथ जो जहनी तौर पे थोड़े तंदुरुस्त नहीं थे उनके साथ वक्त गुजार चुका हूँ। सिस्टर जी बिल्कुल आप बजा कह रही हैं जी। तकरीबन कोई 7-8 साल मैंने उधर काम किया। देन अगेन आई वाज सेंट टू शादरा अगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र 2024 जनवरी में सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस में हुई थी। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस एक बिल्कुल नई रियलिटी थी मेरे लिए। First of all, working out from Lahore Diocese, it was a new experience. Then the second experience, working in hospice, it was a big challenge for me. But मैंने हमेशा constantly प्रेयर में हॉस्पिस की जितनी भी मेरे सामने चैलेंजेस आते थे उन चैलेंजेस को मैं हमेशा हर रोज़ मॉर्निंग प्रेयर में, इवनिंग प्रेयर में खुदा के सामने रखती थी। तो उन सारे चैलेंजेस के बावजूद खुदावन ने मेरी बहुत रहनुमाई की। उसने मुझे बहुत गाइड किया कि किस तरह से टीचिंग फील्ड से जब मेरी फील्ड चेंज हुई तो किस तरह से मैंने दिन ब दिन हर एक पेशेंट को किस तरह से डील करना है, जितने भी इधर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से देखना है और किस तरह से खुश सलूबी के साथ एक अच्छी रिलीजियस होते हुए अपनी प्रेजेंस उनके दरमियान मैंने शो करनी है। सिस्टर जी वाकई आपकी खिदमात जो हैं वो पुरमानी हैं। कैसे आपने फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से फिर यहाँ पे और एक ये बिल्कुल नया फेज़ था आपके लिए। तो आपकी इन बातों के अंदर जो एक बात बड़ी खूबसूरत मुझे लगी, आपने अपनी सारी मुश्किलात को हमेशा खुदावंद के सामने रखा है जी। और ये हमारे लिए भी सबक है कि मुश्किलात में हम बाज़ औक़ात हिम्मत हार के दाएं बाएं भागने लगते हैं। जब आपके ऊपर मुश्किल आने लगे आप लोग समझ लीजिए कि खुदा आपके नहायत करीब है। आपको सिर्फ उसे पुकारना है, वो आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सिस्टर जी आपने इतना वास्ट तजर्बा रखा है इस फील्ड के अंदर और आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे यकीनन ऐसे वाक़यात होंगे जिसमें बहुत सारे नौजवानों को आपने मुतासिर किया होगा। तो मैं आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये ईयर ऑफ जुबली चल रहा है, तो इस जुबली ईयर में आप हमारे नौजवानों को कोई ऐसा पैगाम दे कि वो अपनी बुलाहटों को पहचाने, वो खुदा की आवाज़ को पहचाने और चर्च के साथ वफ़ादार रहें। तो कुछ आप हमारे नौजवानों के लिए भी कलमात अदा कीजिए। इन सारे सालों में मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता नौजवानों के साथ रहा है। हमारी कांग्रीगेशन में बच्चियां जो फॉर्मेशन में आती थी, मैंने बहुत सारे साल उनके साथ गुजारे हैं। यूहन्नाबाद में मैंने यूथ के साथ काम किया, शादरा में मैंने यूथ के साथ काम किया, वेस्टरिज पैरिश में भी टाइम टू टाइम यूथ के साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं। इन बहुत सारे सालों में बहुत जगहों पे हमने वेकेशन प्रोग्राम्स भी किए और ना सिर्फ हमने नौजवानों की खिदमत, नौजवानों को हमने रास्ता दिखाया कि ना सिर्फ रिलीजियस लाइफ के लिए बल्कि मसीही नौजवान होते हुए वो अपनी बुलाहट को पहचाने। किसी भी कॉलेज में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है या किसी भी इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस मसीह की प्रेजेंस होनी चाहिए लोगों के दरमियान में। कई दफ़ा बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके डिस्करेज हो जाते हैं, बट जब भी यूथ के साथ मेरी मीटिंग्स होती थी तो मैं बच्चों को हमेशा यही कहती होती थी, 12 रसूलों ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और हम जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1, 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी मौजूदगी मसीही अलामत है और हमारी मौजूदगी सारे स्टूडेंट्स पे भारी होनी चाहिए। भारी इस सेंस में कि हमारा बर्ताव, हमारा बोल चाल वो होना चाहिए जो अंजीली इकदार हैं। बुलाहट तो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, फादर्स भी बनते हैं, सिस्टर्स भी बनते हैं, बट एट द सेम टाइम मसीही बुलाहट माशरे में रहते हुए अंजीली इकदार को मानना, उनको पहचानना और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना, वो सबसे बड़ी बुलाहट है। सो आज भी नौजवानों का मैं यही सबक देना चाहूँगी, यही पैगाम देना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी हमारी मौजूदगी है, हम स्टूडेंट हैं, हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, अंजीली इकदार
سنڈے اسکول سے پہلے ہمارے خاندانوں سے ہی ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو وہ انجیلی اقدار جو ہم نے اپنے خاندان سے سیکھی، سنڈے اسکول سے سیکھی، خود چرچ جاتے ہوئے سیکھی، وہ ہماری روزمرہ زندگی کا آئینہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا سسٹر جی آپ نے. نوجوانوں، آپ کے لیے سسٹر جی نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ یاد رکھیں آپ زمین کا نمک ہے، اور نمک تھوڑا بھی بہت ذائقہ دیتا ہے. آپ یسوع کا نور ہیں. یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو. اس نور کو پھیلانے والے بنیں، تب جا کے آپ اپنی مسیحت کی اس اقدار، ان باتوں، اس اعمال سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ آپ یسوع کے شاگرد ہیں. سسٹر جی آپ کی ان خوبصورت باتوں کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں. ہمارا چینل آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں ادا کیا ہے. خدا آپ کو کثرت کی برکت عطا فرمائے. آپ کے اس مشن میں، اس جو ذمہ داری ہے، خدا اس میں آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے. بہت بہت شکریہ. باتیں سسٹر جی بہت سی ہیں کہ اور کی جا سکیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر سے ملیں گے. یاد دلاتا چلوں، ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اور آخر میں ہم ایک بار پھر سے خدا کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے چھپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی وساطت سے یہ چینل ہم تک ہمارے پاس ہے، جو ہم آپ کے ساتھ اس کے تھرو بہت سی بلاہٹ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں. اور ساری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت عطا کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ.